अब होगी शुरू, अब हुई है शुरू. So now let me start from the very first point is what a teacher wants from the students. Number one is class, come to class every day without any fail. The student must be present in your class. Number two is come to class doesn't make any sense if the child is not willing to learn. आपके क्लास के अंदर घुसते के साथ ही बच्चा बोलता है मैडम आज पढ़ने का मन नहीं है. ऐसे मन से नहीं चलेगा ना काम. Third thing is, if you are coming to this school, then you must come prepared. That is, focused and motivated to learn. और जब अगर focused and motivated है, then you must be able to participate actively in the learning process. Just 1 second, I will mute my mobile, otherwise ये टिंग टोंग करता ही रहेगा. क्योंकि हमारी एक वर्कशॉप आ रही है कल, उसके लिए ये लोग बड़े कीनली पेमेंट कर रहे हैं धन सवेरे से. I am still audible, I believe so. Audible प्रीति नहीं. चलिए. So participation should be active. Active participation or passive participation, there is difference. Passive participation means this is one-way communication. The teacher is speaking and utilizing the board. Child is looking at the board and jotting down the notes. That's all. Active participation may there is no writing on anything. The student is speaking, the teacher is speaking, delivering the lecture, and then there is a positive interaction. आपने कुछ भी बोला, 1-2 मिनट बोलने के बाद there is one hand raised. कि madam, I have some problem. That means the child is learning actively. But during that activity, the child should be respectful also. It is not like that ki mute. It should be respectable. It is not like that ki you are speaking, you are teaching, and then the child stands up immediately and starts talking. They should realize the worth of what they are getting, what they are receiving from you. It is something that they should realize. It is not like that कि आप कुछ बोल रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. It is not like that. उनको समझ में भी आना चाहिए, and they should actively participate. Means they should realize the worth of what I am teaching or what I am learning. जो मेरा कल का प्रोग्राम है, that is 21st century learning skills. सोनी साहब वहां पर होंगे. So probably if he wants, anybody of you can join. Otherwise he will guide you now on those screens. और अगर आप चाहेंगे तो ये वाली वर्कशॉप के बाद हम नेक्स्ट जो भी अभी हमारा जो एजेंडा बना हुआ है पहले वो देख लेंगे. और टाइम आगे ज्यादा भी लगेगा तो that doesn't make any difference. There is no limitation of मॉड्यूल का नंबर कितना है या डेज कितने लगते हैं. If Soni Saab thinks that the 21st century learning skills are important to you people, I will conduct that also for you. Those 4 skills are there. They are called learning skills. That is, बताइए कोई है, कोई बता सकता है? नहीं. सोनी साहब तो बता ही देंगे. LSR नहीं, LSR तो बाद में आता है. 3 L's are there, that is learning skills, literacy skills and life skills. Learning skills में है, there are 4. The first one is critical thinking, then cooperation. तो हम उसको बाद में कर लेंगे. If he thinks so that it is worth, I will do that.
Critical thinking means he should be able to understand how to find out the solution of a problem. Solution is not important as much as how the process of finding that solution. Answering is equally important as what the answer is important, and how it is achieved, that is also important. And then recognize individual strengths and weaknesses. यानी कि हर बच्चे को अपनी पता होनी चाहिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और मेरी ये वीकनेस है. दिस आई जनरली कवर इन हाउ टू लर्न में मेरा एक मॉड्यूल है, लर्निंग स्टाइल्स. हाउ द चाइल्ड लर्न्स, that problem, that also is not only solution, that also creates a problem. Say for example, I am a solitary learner, which means मेरे को भीड़ भाड़ में पढ़ाई नहीं होती है. जब घर में भी जाके सब लोग सो जाते हैं, डिनर के बाद सब लोग सो जाएंगे, तो I will take out my book and turn the pages one by one only for 15 minutes, and I will learn everything, all subjects, whole day. सॉलिटरी लर्नर्स होते हैं. कुछ होते हैं ग्रुप लर्नर्स. एग्जाम के टाइम में मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी मैं निखिल के यहाँ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए. पापा बोलते हैं कान उमेट के, पढ़ने ही जा रहे हो कि वहां पे कुछ और भी होता है. बट दैट इज द लर्निंग स्टाइल, एंड द पेरेंट्स ऑल्सो मस्ट रियलाइज दिस थिंग. यहां तक समझ में आ गया हो तो वी मूव ऑन टू द सेकेंड स्लाइड. बोलिए चलें आगे सर. चलिए नेक्स्ट इज फ्रॉम पेरेंट्स. पेरेंट्स का रोल इस लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे डोंट रियलाइज. वो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम लेके आ जाते हैं. जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इफ अ पेरेंट कम्स टू यू द प्रिंसिपल एंड आस्क कि सर मेरे को उस टीचर से मिलवा दीजिए, ये प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम आप मेरे को बता दीजिए, टीचर को मैं यहाँ पे नहीं बुलाऊंगा. दैट इज टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द टीचर. एंड मैं बताऊं, इसमें प्रिंसिपल के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती है. उनको कन्विंस करने के लिए कर भी देंगे ना, तो वो जाके मैनेजमेंट से बोलेगा जी प्रिंसिपल तो बड़ा वो क्या कहते हैं, शील्ड टाइप का प्रिंसिपल है कि अपने टीचरों को बचाता है, उनकी गलतियों को छुपाता है. इनके ऊपर ब्लेम लग जाएगा. बट दे डोंट रियलाइज कि सुप्रीम इंपॉर्टेंस इज द सेल्फ रेस्पेक्ट और द रेस्पेक्ट ऑफ अ टीचर. जैसे कल किसी ने मेरे को बोला था कि आई कम टू स्कूल फॉर रेस्पेक्ट. रेस्पेक्ट इस प्रोफेशन में है नहीं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि ओपन एंड ट्रस्टिंग रिलेशन. मैं आपके बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो विच मीन्स कि आई एम सीरियसली इन्वॉल्व इन हिज गेन्स. I am seriously concerned that what I am teaching the child must learn. Then second thing is that कि child का interest क्या है. The parents must understand that the child is very much keen to learn mathematics. Of course, English is important, science is important, social studies is important. But the child is more keen to learn mathematics. And most of the times, 60% of his learning time is in mathematics. And you are concerned, but they must understand that the child's interest क्या है. Then, अगर उनके पास कोई genuine concern है, genuine concern means कि मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है जी, मेरे बच्चे की handwriting खराब है जी. So they must communicate these type of problems. Rather than कि वो आते हैं पीटीएम में और बोलते हैं कि मेरे बच्चे को करेले की सब्जी पसंद नहीं है. उससे काम नहीं चलेगा कि मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है साहब. They must realize this thing and they must communicate. Then the parents should support the teachers and not condemn or question their motives. कि सर आपने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों बोला, तो उसमें आप देख लीजिए
कि the relation between the parent and the teacher must be open and trusting, कि बोला तो कुछ फायदे के लिए बोला. Then they should reinforce the classroom management strategies. Classroom management आपके मॉड्यूल्स में मैंने करवाना है. उसमें strategies को कैसे they can reinforces they should reinforce that learning. They should reinforce those strategies. Strategies classroom management की strategy में एक आता है classroom what you call discipline, जिसमें procedures, rules and regulations, these all are there. So they should try to reinforce those strategies rather than condemn them. आप मेरे बच्चे को तो बहुत जोर से प्यास लगी थी जी, आपने क्यों रोका? तो प्रिंसिपल साहब ही उसको उल्टा जवाब दे देंगे कि अगर आपके बच्चे को प्यास लगती है तो आप एक वाटर बॉटल क्यों नहीं भेजते उसके साथ? टीचर्स, हमारे पास इतनी स्ट्रेटजीज हैं पेरेंट्स का माउथ शट करने के लिए, बट जनरली वी आर कंसर्न ओनली विद अ सब्जेक्ट और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर. जो मेरे पास है मैं उनको उसको ट्रांसफर कर दूं बस. दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन. The purpose of education is to make the child understand the concept, implement the concept creatively, and think about it, and then critically think about it, and then analyze something, and then synthesize out of it. 1 + 1 2 होता है, 1 + 2 3 होता है, 2 + 2 कितना होगा फिर? So they should critically think and then create. The parents should come to provide helping teachers to educate students rather than condemn their actions, condemn their teaching, condemn their any type of correction work also, anything. They should try to help the teachers in educating the child. Condemnation तो देखिए, condemnation, criticizing कहीं भी होता है, किसी भी जगह होता है. मोदी जी ने ये कर दिया, वंदे भारत लगाई थी, बहुत अच्छी चली. एक बार भैंस उससे टकरा गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, वंदे भारत जो है वो रुक गई, बस अपोजिशन कूद गया. ये पॉलिटिक्स का काम है. हम लोग फ्रॉम पेरेंट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट इज टू हेल्प अस. इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर चाइल्ड, यू शुड कम अप एंड देन यू शुड स्पीक आउट द प्रॉब्लम. कभी भी टीचर के पास ये भी एक कंप्लेंट आनी चाहिए कि मैडम आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाती हैं, तेज तेज पढ़ाती हैं. If this is a genuine problem, then principal will certainly guide you कि मैडम अपना पेस थोड़ा सा स्लो कीजिए. आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि मैंने देखा 90% केसेस में कि सर अगर पेस कम कर देंगे तो सिलेबस कम कैसे होगा, सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा. वो आर्ग्यूमेंट तो पूरी जिंदगी चलाते रहिए आप. बट वी हैव गॉट ए प्रॉब्लम एट हैंड. मैं बताऊं आपको कि मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि 40 बच्चों में से अगर एक बच्चा फेल हो गया, दैट मीन्स द टीचर हैज फेल्ड 2.5%. क्यों गिरीश जी बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? तो हमारी टीचिंग जो है वो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए टू एड्रेस द नीड्स ऑफ ईच टाइप ऑफ चाइल्ड. Then the parents, what we expect from the parents is they must value education. Education की value क्या है? They must stress upon the importance of education of their child. This is what we expect from parents. ज्यादा expectation कहाँ है? Students के बारे में भी 8-10 ही है. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 9 है. Next, from administration, we want their back in our difficult situations. वो difficult situations हैं students के साथ discipline की, parents के साथ disagreement की,
फैकल्टी या कोलीग्स के साथ, कभी कभी कॉन्फ्रेंटेशन हो जाता है. So in these type of situations, we want the administration, and principal is also a part of administration. So we expect even principal also to come and resolve to amicably, so that कि दो बच्चों के, दो टीचर्स के बीच में वो चीज जड़ से खत्म हो जाए, वहीं के वहीं खत्म हो जाए, rather than कि it develops into grudge lifelong. आगे 20 साल उन्होंने काम किया, लेकिन 20 साल में 2 मिनट के लिए भी वो लोग आमने सामने बात नहीं करें. That should not happen. Then the administration should provide adequate resource despite financial crunch. कुछ भी हो जाए, आप अपना बजट कहीं और कम करिए, बट एटलीस्ट रिसोर्सेज के लिए, टीचिंग रिसोर्सेज के लिए आपका फाइनेंशियल क्रंच हो भी, तब भी वो रिसोर्सेज आपको फुल्ली अवेलेबल होने चाहिए. That is what we want from administration. Provide encouragement and advice. Sometimes, not always. कभी कभी मैंने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले किसी एक टीचर के पीछे ही पड़ जाते हैं क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, या उसके हस्बैंड से मैनेजर का कभी झगड़ा हो गया होगा तो वो स्कूल में निकालते हैं उसके ऊपर. We don't expect this thing. We expect them to provide encouragement. यहां तक आपने बहुत बढ़िया किया. Yes, ma'am. Preeti ma'am, you can do much better than this. Girish sir, you can still improve. Try doing it. इस तरीके का. Now, administration must also understand what a teacher is doing in the class. It is not that the process of teaching is very complicated. ये छोटे मोटे आदमी के समझ में नहीं आती है, लेकिन जनरली जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं ना, ये लोग समझते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए. आई नो एवरीथिंग सर, पीएचडी हूं. अरे आप पीएचडी हैं तो क्या हो गया? आप मेरे कल शाम के ग्रुप में आएंगे तो देयर आर 17 डॉक्टर्स who are principals in public schools, including one from DPS Odisha. Why they are coming? PhD हैं तो मेरी, I am a simple postgraduate. तो वो पेपर क्वालिफिकेशन जो है, that doesn't make any difference to anybody. But yes, what you have learned through your experience, that makes difference. So parents must also, administration must also, principal must also understand कि what I am doing in the class, and then share their practices. अगर उनको लगता है कि इस practice को और improve किया जा सकता है, तो they should contribute to the development. And the last one is communicate their expectations in clear terms. प्रीति मैडम, आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं. अब अच्छा कर सकते हैं तो बताओ तो सही ना, कैसे अच्छा कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप ट्राई करो. सर बताओ तो सही, क्या चीज इंप्रूव करूं? ओहो बेटा, ट्राई तो करो. अरे करूं क्या ट्राई भाई, वो तो बताओ. सो एडवाइस तो देने में सब लोग, हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत, आपको पता, गली गली में नहीं, घर घर में, कमरे कमरे में डॉक्टर हैं. आप अभी किसी को जाके स्कूल के बाहर बोलना, सिर में बड़ा भयंकर दर्द हो रहा है, एक आदमी अपनी जेब से निकाल के फट से आपको डोलो पकड़ा देगा, दूसरा आपको डिस्प्रिन पकड़ा देगा, तीसरा आपको झंडू बाम पकड़ा देगा, चौथा आपको विक्स पकड़ा देगा, पांचवा आपको बोलेगा कि बॉइलिंग वाटर में विक्स डालो, इनहेल कर लो, हो जाएगा. एक बहुत ही ज्ञानी आदमी आता है ना, एंड दैट इज एक्सपीरियंस व्हाट आई एम टॉकिंग नाउ, व्हिच इज वेरी प्रैक्टिकल. जब आपके सिर में दर्द हो ना, एक धागा लो और एक उंगली में बहुत जोर से लपेट लो, कस के लपेट लो. जब आप लपेट रहे होंगे तो धमक होगी आपके सिर में, दैट इज थ्रॉबिंग पेन. धड़ाक 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 धड़ाक. ये 2 मिनट बांध के रखेंगे ना,
तो उसके बाद आपका कंसंट्रेशन दिमाग का यहाँ पे चला जाएगा। 5 मिनट बाद उस धागे को खोल दीजिए, ये पेन भी चला गया आपका और सिर का दर्द भी चला गया। And practically I have seen it myself. There was a time, due to tension and work stress, I used to get more or less every day I used to get this. And every day I used to swallow one Disprin. 60 साल से उम्र बड़ी हो गई है, 61 साल का हो गया हूँ, आज तक मेरी जिंदगी में सिवा डिस्प्रिन के कोई और दवाई नहीं ली, कोई और दवाई अभी भी नहीं है। एंड टचवुड अगर भगवान ने चाहा तो आगे भी नहीं चलेगी। बट try to express yourself. This is what we want from administration. अच्छा करो सकते हो, क्या अच्छा करूं वो तो बताओ। आप लोगों में से इंडियन आइडल कौन कौन देखता है? जरा हाथ खड़ा करो ऐसे। कोई भी नहीं देखता? हाँ, ये देखते हैं ना साहू साहब। साहू साहब अभी अमित कुमार जी आए थे एक एपिसोड में, उन्होंने अयोध्या वाले लड़के को बात एक बताई थी कि शुरू वाला जो अंतरा है उसको इस तरीके से गाओ। फिर उसने ट्राई किया था, गाया था कि हाँ अब ठीक पकड़ा। इट इज नॉट कि आप कर सकते हो बढ़िया, सभी बढ़िया कर सकते हैं, बट क्या बढ़िया करना है, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट लाइज इज कम्युनिटी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इन्वॉल्वमेंट। वी वांट द वॉलंटियर्स। यू कम टू माय क्लास, अगर आप इंजीनियर हैं और मैं मैथ्स का टीचर हूँ, साइंस का टीचर हूँ, यू कम टू माय क्लास एंड टेक अप वन टॉपिक, डिलीवर करिए उसको। क्लास में हेल्प कर सकते हैं, फंड रेजिंग में हेल्प कर सकते हैं, कम एंड रीड अ बुक। तो अपनी एक्सपर्टीज आप वहां पे बताइए। मेरा एक मॉड्यूल है हाउ टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ योर स्कूल, उसमें यही चीज एक आती है कि वी इनवाइट, आई जनरली यूज टू इनवाइट, एक फौजी को बुला दिया, रिटायर कर्नल को, असेंबली टाइम में एक बुके दिया 200 रुपए का। 200 रुपए का तो अब आता है, उस समय तो वो मेरे ख्याल से 50 रुपए का था। एक बुके दिया and just we ask them to motivate our children how to get entry into officers as army officer, navy officer, air force officer। तो army में entry कैसे लेनी, and they were very happy कि at least my profession is being respected and I am being honored, कि they think so that there is my worth। एक आर्मी ऑफिसर ही बता सकता है कि आर्मी में कैसे जाना है, rather than कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं आपको बताऊं एक बात, बहुत एक कड़वा सत्य है। मेरी पानी की बोतल रखी है, इफ यू डोंट माइंड आई विल जस्ट हैव अ सिप। ऑलराइट, तो जनरली क्या बोल रहे हैं कि दे शुड, एक डॉक्टर आ जाए आपकी असेंबली में, किसी बच्चे का डॉक्टर हो पेरेंट, तो यू कैन इनवाइट देम। मैं बुला लेता था उनको, 10 मिनट रह गए, एक स्लाइड रह गई है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो दे शुड शेयर देयर विजन, देन दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी से, कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। मैंने अभी भी देहातों में देखा है, लड़की को क्यों पढ़ाना है जी, अभी 8-10 साल के बाद शादी हो जानी है, घर जाके रोटी बनाएगी। रोटी बनाना ही लड़की का काम है क्या? रोटी भी बनाएगी, बट रोटी बनाने के साथ साथ अगर एक काम और कर ले, दैट इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, तो क्या बुराई है? Then what we expect from community is to prioritize good education. ये बड़े बड़े स्कूल, व्हाइट टाइल्स, चिकना फ्लोर, व्हाइट बोर्ड, सीसीटीवी,
इनसे ये स्मार्ट स्कूल नहीं होता है। स्मार्ट स्कूल होता है जब वहां के बच्चे होते हैं। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, देयर इज ए स्कूल इन डोंगी पानी, जिनके बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं है, बट दे कैन स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, क्वाइट वेल आई एम टॉकिंग अबाउट। And then from the community we expect proud of their school and to be a part of school. Come and help in the growth of our school. Our school means your school as well as my school. It is equally yours, equally mine. अगर अब तक कोई प्रॉब्लम है किसी को तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। लास्ट स्लाइड है, उसके बाद वी विल कम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। वैसे है कुछ नहीं, ये क्वेश्चनेयर है, इसके बारे में आप लिख के देंगे। नोट कर लीजिए, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके पास, 4, सब लोग नोट कर लीजिए। नेम 3 बेस्ट स्कूल्स इन योर नेबरहुड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी चलिए, इसको छोड़िए। आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग ऑफ स्क्रीन एंड नाउ वी इंटरेक्ट पर्सनली विद ईच अदर। चलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा एंड नाउ यू स्पीक आउट व्हाटसएवर यू वांट टू से समथिंग अबाउट, कि आज की प्रेजेंटेशन में आपने क्या देखा, कोई डाउट, कोई सजेशंस। अनम्यूट करिए पहले आप। हाँ जी, गिरीश जी बोलेंगे, बोलिए सर। पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट कैसे स्कूल में की जा सकती है? जैसे कि आपने बताया कि ये बस हमारा स्कूल नहीं है, उनका भी स्कूल है, ये वाली मतलब फीलिंग्स या फिर ये थॉट उनके अंदर कैसे? ये अभी तो मैंने बताया था ना कैसे। आप उनको बुलाइए स्कूल में, उनको ऑनर कीजिए। भाई आपका खर्चा कितना आएगा, बुके नहीं भी देंगे तो एक गुलाब का फूल दे देंगे, कितना खर्चा आएगा, 10 रुपए का। 2 समोसे, 1 कप चाय, कितना खर्चा आ गया। बट दे विल बी सिटिंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफिस, वहां बैठे, उनको रिस्पेक्ट दिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आपको हमारे स्कूल में अच्छा क्या लगता है। अच्छा तो सारी दुनिया बता देती है, आप ये बताइए कि इसमें क्या और होना चाहिए जिससे ये और बेहतर हो जाए, जिससे हमारा स्कूल और अच्छा हो जाए। कमियां नहीं बतानी, कमी तो मैं आपके अंदर 50 बता दूं, आप मेरे अंदर 500। क्यों साहू साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा। जी सर। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, है ऐसे ही है ना। मुझसे बुरा ना मुझसे कोई, बुरा ना। अगर ढूंढने की कोशिश करें तो, अदरवाइज तो मुझसे बढ़िया है ही नहीं कोई। और मैं एक बात बताऊं, मैंने अभी पिछले महीने लीडर्स की एक लीडरशिप डेवलपमेंट क्वालिटीज के लिए एक वेबिनार लिया था। वहां पे सारे के सारे प्रिंसिपल्स थे। When I went on to the stage, not a single principal stood up. और मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट यही है कि आप कितने ही बड़े राजा, महाराजा, सम्राट हों, ऊपर वाले ने आपके ऊपर जरूर कोई ना कोई बनाया हुआ है। सर मस्ट रियलाइज कि यू आर नॉट सुप्रीम। सुप्रीम तो एक ही है, वो नीली छतरी वाला। शर्म से पानी पानी हो गए। एवरीबडी स्टूड अप एंड स्टार्ट क्लैपिंग। मैंने कहा अपनी इज्जत के लिए नहीं, आपकी इज्जत के लिए। क्यों? अगर आप मेरी इज्जत करोगे तभी आपको इज्जत मिलेगी, अदरवाइज तो मैं भी स्टेज पे जाके बैठ जाता आराम से, कुर्सी लावे, कुर्सी पे बैठ के लेक्चर देना है, लेक्चर देना है तो बैठ के दे दूंगा। जनरली प्रिंसिपल्स, यंग एज प्रिंसिपल, मैंने एक पंदरकावड़ा गया था, मैं नागपुर से 150 किलोमीटर आगे है। नागपुर से वहां पर पहुंचने के लिए मेरे को 5 घंटे लगे।
Principal never even took pains to come out of his office to welcome me in the reception area. सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो क्या मैं उसको ये बताता कि बस में बड़े झटके लगे, मेरा सिर दर्द हो गया, मेरा पर्स खो गया, मेरे को भूख लगी? अगर एक कर्सी के नाते छोटी सी ये बात पूछ, एंड ही वाज यंग मैन ऑफ नियरली 26-27, वो चेयरमैन का ही लड़का था, उसको एमएड करवा के प्रिंसिपल बना के बैठा दिया। अगर आप एक भिखारी को भी आप करके बोलेंगे ना, तो आप देखिए जनरली लोग बोलते हैं कि ये तबका ऐसा है, अरे इनको इतनी इज्जत की जरूरत नहीं होती है, सिर पे चढ़ जाते हैं। कोई सिर पे नहीं चढ़ेगा आपके। सिर पे तो एक वो नीली छतरी वाला है, उससे ऊपर तो कोई चढ़ ही नहीं सकता। रियलाइज अबाउट दिस। चलिए आगे चले, कोई और है किसी के पास कुछ बात बोलने के लिए? दिस इज गुड साहू साहब। जितना आप पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे ना, उतने ही आपको अपनी कमियां नजर आएंगी, बट उस डर से उसको अवॉइड ना करें। जनरली बड़े स्कूल्स में आप जाओ तो वहां पे विजिटिंग आवर्स होते हैं। मेरे स्कूल में मैं 16 साल प्रिंसिपल रहा। 16 ये और 2 18 साल प्रिंसिपल रहा। कभी भी कोई आ जाए मिलने के लिए, सर आपसे कोई मिलने आया है, मैंने कहा एक सिस्टम रख दिया था कि स्लिप भरवा लो, पर्पस क्या है। पर्पस में ऑफिशियल लिखेगा तो मत लेना, कि सर नहीं एग्जैक्ट पर्पस लिखिए आप। चपरासी को इतना ट्रेन कर दिया था, आते थे लिखवाते थे, और 2 मिनट के अंदर अंदर मैं उनको अंदर बुला लेता था। अब आप आए कि नहीं सर मैंने सोचा बच्चे का टिफिन देने आया था तो आपके दर्शन कर लूं। अरे मैंने कहा दर्शन करने हैं तो शाम को महादेव के दर्शन करो ना जाके। दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए हमारे पास 1 मिनट बचा है, किसी और को कुछ बोलना है तो जनरली। आज अनीता जी हंस नहीं रही है, क्या बात हो गई? एवरीथिंग फाइन? हाँ अब ठीक है, बोलिए बोलिए एनीबडी। प्रीति नर्मदा जी तो बस ऐसे गर्दन करके टेढ़ी और देखती हैं। चलिए आज की प्रॉब्लम अगर किसी को कोई नहीं है तो देन वी क्लोज इट डाउन। जब ये अपने आप बंद हो जाएगा देन इट विल बी स्टार्टिंग कन्वर्टिंग। वो कन्वर्ट होने के बाद सोनी साहब मैं आज शाम को आपको ये वीडियो, कल का एक वीडियो दूंगा और आज का एक ही वाला। कल के दूसरे वीडियो में कोई खास नहीं था, सारा इंटरेक्शन हमारा फर्स्ट वीडियो में है। नलनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज भी टाइम निकाला। सर मैं नमस्ते सबको। सर मैं इस कम्युनिटी के लिए कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त टाइम निकालने के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। और मेरा जिंदगी का एक मोटिव है कि बस मैं अब 30 साल एजुकेशन इंडस्ट्री में स्पेंड करने के बाद मैंने बस अपनी इस बिगर फैमिली के लिए जीना है, उनके लिए कुछ काम करना है, आप जैसों से कुछ नया सीखना है, इन जैसे नए उभरते हुए टीचरों से कुछ नया सीखना है। मेरा बस इतनी ही जिंदगी का मोटो है और इसी के साथ मैं जी रही हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय समाप्त होता धन्यवाद है सर। तो हम लोग सर अब अगली शेड्यूल हम लोग कर लेंगे सोनी साहब मिलके। अगली वर्कशॉप हमारा वेबिनार कब होगा? हर सैटरडे को आपका हाफ डे होता है? हर सैटरडे को हाफ डे होता है।